एक बार फिर मैं अंकित शर्मा आप सभी के बीच। अंकित शर्मा का आप सभी को प्रणाम। An array is a collection of similar type of elements. An array is a collection of similar type of element stored at contiguous memory locations. बेटा array क्या है? array कुछ एलिमेंट का कलेक्शन है। सबका टाइप क्या है बेटा? int। बेटा सी लैंग्वेज में क्या था? सी लैंग्वेज में एरे कंटिन्यूटी में था, दैट इज सिंगल डायमेंशनल एरे इन सी लैंग्वेज। व्हाट विल हैपन इफ आई विल मेक इट डबल डायमेंशनल? So that is double dimensional array in C language. But बेटा अगर हम internal architecture study करें, so all the elements are in contiguous manner. It means अगर बेटा इसका address 2 है, इसका 4, then 6, then 8, then 10, then 12. It means these two elements are also contiguous. So according to the memory allocation, it seems there is no single dimensional array. There is no single dimensional array in case of double dimension. बेटा यहां से देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये एरे डबल डायमेंशनल है, बट इन रियलिटी ये एरे भी कहीं ना कहीं सिंगल डायमेंशनल ही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने एलिमेंट को जो स्टोर किया है वो कंटिन्यूटी में किया है। इट मींस अगर आपको फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट चाहिए, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। You will always get same number of elements, 5 इसमें बेटा और 5 इसमें। तो बेटा कंक्लूजन क्या निकला कि सी में मल्टी डायमेंशनल एरे होते ही नहीं है। फ्रॉम मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू, मेमोरी में सारे एलिमेंट कंटिन्यूटी में ही है। बेटा यही रीजन है कि आपने डेटा स्ट्रक्चर में रो मेजर और कॉलम मेजर स्टडी किया है। आप किसी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं तभी क्योंकि वो सभी एलिमेंट कंटिन्यूटी में थे। एग्जांपल की बात करते हैं, अगर बेटा मेरे पास 5 by 6 का कोई एरे है तो 6 एलिमेंट और बेटा ऐसे ऐसे 5 रोज, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5।
But in reality, this row is not placed here. It is also placed here. And again, we have a same number of elements. तो बेटा अगर आपको different type or we can say according to the number of element array को differentiate करना है तो क्या possibility है? बेटा ये एक एरे है सिंगल डायमेंशनल जिसके पास 5 एलिमेंट है, इसका रेफरेंस ए के पास। It means if I will write A0, I can access this one. If I will write A1, I can access this one. If I will write A2, I can access this one. I am talking about in Java. Let's say बेटा B एक एरे है, we have 4 elements, रेफरेंस वेरिएबल बेटा B के पास। एक और एरे है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, रेफरेंस वेरिएबल बेटा C के पास। सो बेटा इस एरे का और इस एरे का कोई रिलेशन नहीं है। ऑल द एरे इन मेमोरी आर इंडिपेंडेंट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इफ आई विल मेक these memory locations contiguous, let's say the address of this one is 10 100 190. So these locations are contiguous and these locations are also contiguous. Such arrays in memory are multidimensional arrays because if it is RAM, this one is the first block having 5 blocks. Second block 4 block. Third block. Because these all arrays are independent and placed at different memories. So you can say at different dimensions. That's why this is called multi-dimensional arrays. And why we are saying arrays? Because these locations are in contiguous, and let's say we have a reference of this one to the variable C or D. तो बेटा वो arrays जिनका size equal ना हो, they are called jagged arrays. So Java support jagged arrays. समझ गए बेटा? एक बार बेटा रिपीट करता हूँ, ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है जिसमें 5 ब्लॉक है, इसमें 4 ब्लॉक है और बेटा इसमें 6 ब्लॉक है। ये सभी ब्लॉक कंटिन्यूटी में है, और 5 और 4 और 6, लेकिन बेटा ये आपस में कंटिन्यूटी में नहीं है क्योंकि बेटा ये सभी ब्लॉक कंटिन्यूटी में है लेकिन डिफरेंट जगह प्लेस्ड है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल these arrays are multi-dimensional arrays. और बेटा ये सभी एरे कंट्रोल कैसे हो रहे हैं? इस वेरिएबल से। If I will write D0, what is D0? This one. I will write D1, what is D1? This one. If I will write D2, what is D2? This one. If I will write D03,
So that is D0 and 0, 1, 2, 3. This. So that is called jagged arrays. So बेटा हमने डिस्कस किया arrays को, हमने डिस्कस किया jagged arrays को, ठीक है बेटा. Now we are going to discuss some programming concept of array as well as jagged arrays and exception handling. So हम मिलते हैं बेटा कंप्यूटर पे, तब तक के लिए आपको अली शर्मा का प्रणाम. खुश रहिए. बेटा एक बात और, अगर आपको प्रोग्रामिंग को सीखना है, पहले पेशेंस रखना होगा आपको. डोंट थिंक कि रोज वीडियो देखनी पड़ती है, कुछ हो तो नहीं रहा, मैं और जगह भी वीडियो देख चुका, नहीं आ पाएगी आपको प्रोग्रामिंग. पेशेंस रखना होगा, मेहनत से प्रोग्रामिंग करनी होगी, देन आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी. ठीक है बेटा, प्रणाम.